Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start a new topic in the series of organic chemistry. Yes, you heard that right. We are going to basically start a new chapter in the series of organic chemistry, and this chapter, structure and bonding, you might have studied in your Bachelor of Sciences medical and non-medical first year and some other science courses, for example biotechnology, honors physics, something like that. So you might have read this relatable topics like inductive, resonance, hyperconjugation effect in your lower classes, that is your plus 1 plus 2 as well. So we are going to take up this particular chapter in discussion in topic in the all these topics that are mentioned in detail in this particular series. So before proceeding further, I would like to apologize to all of you for not being able to upload the content related to chemistry from the past 2 months. I have been quite preoccupied with some of the stuff which was actually quite important for me to do, and which is why I was not able to upload any content. So yeah, I would like to apologize for the same, and I would like to ensure you that I'll be if not consistent, will be uploading the video in around 2 or 3 videos in a week. I'll try to do that much I can do. So yeah, this is all about it, and the topics that we are going to see are, you can see it in the contents, that is inductive effect, electromagnetic effect, resonance effect, hyperconjugation effect, aromaticity, and hydrogen bonding. So yes, these are the star topic of these chapter. There are some other topics as well which I will be uploading definitely. But first of all, I will be finishing these few topics. Correct. So this is one thing about it. And without wasting any more time, I would like to start the chapter with inductive effect first of all. But I would like to make a request again to you to come up with your notebook and pen while you are watching the video, because it would be easy for you to understand while making your own notes than to just listen about organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ सुनने से किसी को नहीं आएगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनिक समझ आएगी, राइट? तो चलते हैं आगे. First and the very important topic among this chapter is inductive effect. So what do you understand by inductive effect? क्या है inductive effect यहाँ पे? So देखिए, the type of sigma electron displacement along the saturated chain of atom due to the presence of polar covalent bond in it is called inductive effect or simply I effect, जिसे आप कभी कभी ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं और टी इफेक्ट भी बोल सकते हैं. So examiner, so as to confuse you, can ask you, instead of asking you inductive effect, they can ask you what is transmission effect. तो होता क्या है ट्रांसमिशन इफेक्ट आपके पास? There is basically occurring the sigma electron displacement. Okay, एक सैचुरेटेड चेन है, सैचुरेटेड चेन फॉर एग्जांपल आपके पास CH3, CH2, the one carrying or having single bond in it, something like this. तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन सच काइंड ऑफ सैचुरेटेड चेन ऑफ एटम. किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड. ओके, नाउ there should be the presence of polar covalent bond, something like this. Okay, something like this. So इस तरह की एटम्स और यू कैन सी इस तरह के कंपाउंड्स में आपको जो इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज योर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हैपनिंग इन द एंटायर सिस्टम, दैट इज नोन एज योर इंडक्टिव इफेक्ट. So there are two type of inductive effect basically that we are going to take up in details, that include plus I effect and minus I effect. So what are the basic characters that we have talked about your of inductive effect? That includes, okay, first of all, क्या होना चाहिए? There should only, it will be involving the displacement of what? Displacement of sigma electrons. Sigma electrons की displacement हो रही है, और ये कहाँ पे होती है? It only occurs in the polar single covalent bonds. Okay, दैट इज वन थिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, और वो भी किसमें? पोलर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स में. ओके, दैट इज वन थिंग अबाउट इट. नाउ द अनदर थिंग अबाउट द सेम इज कि क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे कि किस तरह का इफेक्ट है ये. इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली योर परमानेंट इफेक्ट, और this cannot be actually reversed. Okay, this is a permanent effect and it cannot be reversed at all. ये हो गई एक बात.
अब देयर इज अनदर पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका, दैट इज आई इफेक्ट, विद डिस्टेंस ये डिक्रीज करता जाता है। जैसे कि जैसे आपके कार्बन एटम, जैसे कि ये कार्बन एटम है और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप है आपके साथ अटैच, जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाएगा। सो what I have mentioned over here is that the inductive effect decreases progressively as the distance between carbon atom and this electron withdrawing or electron donating atom or group decreases। समझ आई बात? इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है। सो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्लियर? Now, another and the last important topic about inductive effect is that the displaced electron do not leave their orbital, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो आपके डिस्प्लेस कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी जगह में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट इज नॉट गोइंग टू लीव इट्स ऑर्बिटल, राइट? ऑर्बिटल को लीव नहीं करेगा एज सच। ओके, सो दैट इज वन थिंग अबाउट इट। मतलब अगर आपके पास ले लो ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये इसका पूरा का पूरा ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो। नाउ ये आपके पास किस तरह का ऑर्बिटल है? सिमेट्रिकल सिग्मा ऑर्बिटल आपके पास है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन का नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन अब मान लो कि आपके पास कार्बन की जगह यहाँ पे कोई हेटेरो एटम लगा दो, फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दो, जैसे कि हमने लगा दिया यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब क्या होगा? देयर इज गोइंग टू अकर स्लाइट डिस्टॉर्शन ओवर हियर, लाइक समथिंग लाइक दिस इज नो लॉन्गर सिमेट्रिकल नाउ। Okay, and chlorine being electronegative will be attracting the shared pair of electron towards itself, and itself will be acquiring the partial negative charge, and carbon will be acquiring the partial positive charge. So this is now a polar CCl bond, and the effect occurring over here is I, that is inductive effect, जिसे आप transmission effect भी बोलते हो। So there is occurring slight distortion over here, you can see that clearly। Okay, so this is about some of the introduction related to your inductive effect। Now let's just talk about the types of inductive effect। We'll be taking both these types one by one in detail। So the very first इफेक्ट इज योर माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है बेसिकली बच्चा, कि आपके जितने भी कोई भी हेटेरो एटम जो है विच इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ वन कार्बन चेन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी कि कार्बन से के साथ जो आपका कोई भी हेटेरो एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज्यादा होगी, ठीक है, ये तो होगी एक बात। Now, if the substituent attached to the end of carbon is electron withdrawing group or electron attracting group, EAG stands for electron attracting group, तो आपका उस तरह का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसे आप कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगेन आई रिपीट इट फॉर यू, जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके जो कार्बन चेन के जो पूरे के पूरे कार्बन चेन के साथ जो अटैच्ड है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, वो होगा आपका इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर that we have a 3 carbon chain, and the one end of the carbon chain is attached with fluorine, that is quite electronegative as compared to this carbon over here. So what is happening? The partial positive charge, which is quite a lot in this third carbon of yours, it will start to decrease while it is going towards the electronegative atom. So you can see that very clearly. So what is happening? जितनी ज्यादा एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा वहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्गर विल बी द माइनस आई इफेक्ट। ओके, आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू यू, and you can pen down these the decreasing order of minus I effect of some of the common atom and substituent as compared to or relative to that of hydrogen। So आप ये नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा कम किसका होगा? हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर आपके इस कंपाउंड का, देन बेंजीन आ गया आपके पास, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, एंड देयर आर सो ऑन, यू कैन सी। तो इस तरह से आप ये भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको सारे याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना भी हो तो मेन याद कर लो, जैसे अमोनिया हो गया आपका, नाइट्रेट नाइट्रो ग्रुप हो गया, राइट, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इनकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन रिमेंबर वेरी वेल। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट का उल्टा होगा। प्लस आई इफेक्ट में एग्जैक्टली आपके पास क्या होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है विच इज व्हेन अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो सब्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन चेन के एंड में अटैच्ड है
वो कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। तो ऑल्सो जो सब्स्टिट्यूट आपके एंड कार्बन चेन के एंड में अटैच है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो तो उस तरह के इंडक्टिव इफेक्ट को आप बोलते हो बच्चा प्लस आई इफेक्ट। You can see over here. So G is any of your electron not attracting, electron releasing, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आपके इन कार्बन के ऊपर। तो क्या होगा, खुद तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो मतलब उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके साथ वाले कार्बन एक्वायर कर लेगा पार्शियल इलेक्ट्रिक, और उससे उसके अगले वाला और भी ज्यादा एक्वायर कर लेगा, और लास्ट वाला जो कार्बन होगा विल बी एक्वायरिंग द मोस्ट more partial negative charge on itself. So this is due to the G is not yes, G is electron donating, not withdrawing, right? We are talking about plus I effect over here. So जितना ज़्यादा highly substituted alkyl group होगा उतनी ज़्यादा ability होगी उसकी to donate its electron, और उतना ही stronger आपका होगा plus I effect. So चलते हैं आगे अब. Now these are the characteristics that I have already discussed in the beginning of this topic of inductive effect. So आप ये यहाँ पे note down कर सकते हो by just pausing your video, and I'll be proceeding further. So talking about the applications of inductive effect, we'll discuss all the applications one by one in detail. First of all, the stability of reactive intermediate. तो पहले हम बात करेंगे आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चा, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बानाइन, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में आपके नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज योर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम उसमें ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की डेप्थ में डिस्कशन करेंगे तो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड जिनकी स्टेबिलिटी भी है इन तीनों आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की, उसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंडक्टिव इफेक्ट, वो हम समझेंगे हाउ इट इज पॉसिबल। Okay, now next would be your polarity of covalent bond and dipole moment of organic compound. अब next आपका जो application है inductive effect का, that is the polarity of covalent bonds and your dipole moment. तो होगा क्या, आपके जो inductive effect है it causes polarization। आपने पीछे देख लिया कि कैसे polar bond बन रहे हैं, वहाँ पे कैसे polarity, कैसे partial negative and partial positive charge acquire कर रहे हैं आपके atoms, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होगा, हर कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेसिफिक और डेफिनेट डाइपोल मूवमेंट होगा, समझ रहे हो, हर बॉन्ड का एक डेफिनेट डाइपोल मूवमेंट हो गया, और जिसका मैग्नीट्यूड है डाइपोल मूवमेंट का वो फर्दर दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between those two atoms, and second of all it is depending upon the orientation of the various polar bond in an organic compound, ठीक है। सो इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। तो जितना ज्यादा आपके दो कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन द टू एटम्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, उतना ही ज्यादा आपका कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा, उतनी ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो क्या बोला मैंने आपको, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, उतना ही ज्यादा होगा आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उतनी ही ज्यादा होगी आपके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, उतनी ही ज्यादा वैल्यू आएगी आपकी डाइपोल मोमेंट की। सो ओवर हियर यू कैन सी द यू नो द पर्टिकुलर order. Actually this is not the correct one. Let me correct this order for you. Let me just correct this one for you. It is actually, see, अपने आप समझो, अगर कोई चीज ऐसे लिख दी आपके सामने, आपने उसको करेक्ट नहीं बोल देना, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि जितना आपके दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही वो पोलर होगा और उतना ही ज्यादा उसकी डाइपोल मोमेंट होगी। तो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, नहीं है, तो मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो ये कैसे मैंने आपको यहाँ पे उल्टा ऑर्डर लिख दिया, ये इसको करेक्ट कर लो प्लीज, प्लीज करेक्ट इट फॉर योरसेल्फ। ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा आपका CH3F का, इट इज गोइंग टू बी 1.82 डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी डाइपोल मोमेंट की, और यही आपके मिथेनॉल की वैल्यू आएगी 1.71 डाइपोल, और आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.32। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ओके, आई होप इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। सो ओके, सो हियर वी गो। सो आप इसे नोट डाउन कर लो, ये है आपका करेक्ट ऑर्डर, प्रीवियस वन वाज नॉट करेक्ट,
दिस वन इज करेक्ट। खुद देखो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कार्बन और नाइट्रोजन में थोड़ा ज्यादा है, कार्बन ऑक्सीजन में उससे भी ज्यादा है, और कार्बन क्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा आता है CH3F का। ठीक है, ओके, I hope that is quite clear to you. So we'll be proceeding further to the next application. So we are discussing about polarity of covalent bond only. So the very second part in this only is the orientation of polar bond. So where you can see over here, you can see हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर मॉलिक्यूल के पास दो या दो से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है, तो जो उसका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी ओरिएंटेशन पे, कि उसको किस तरह से स्पेस में आपका ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल आपके पास टेट्राक्लोरोमीथेन की बात कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे क्या है, द डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे all the four sides are have the equal वो सभी इक्वल लेंथ में आपके पास वहाँ पे क्लोरीन अवेलेबल है, क्लोरीन एटम। सो दे विल बी द बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल ईच अदर ओवर हियर। ठीक है, ये बॉन्ड जो आपके पास बॉन्ड मोमेंट्स आ रहे हैं, द वन दैट हैज बीन मार्क्ड विद द रेड arrows over here, they will be cancelling each other and there is no net polarity left, which is why आपका dipole moment आ जाएगा यहाँ पे 0। अंडरस्टूड। सो इसकी ओरिएंटेशन भी क्वाइट इफेक्टिव होती है टू अंडरस्टैंड दैट आपकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास। वही आप दूसरा एग्जांपल देख लो किसका, डाइक्लोरोमीथेन का, जहाँ पे इसका फॉर्मूला आपके पास होता है CH2Cl। बच्चा देखो यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट आपकी कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर नॉट प्रेजेंट समथिंग लाइक दैट, जिस तरह आपके इस केस में प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट लाइक दैट ओवर हियर। सो मतलब इनकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी, और अगर इनकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी है दैट मीन्स इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। अंडरस्टूड, आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर टू यू। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। Over here you can see the three cases of dichlorobenzene is what you can see over here. Let me show it using the pointer. Yeah. So first of all you can see the case of ortho dichlorobenzene having the dipole moment 2.54. You can see that these are not going to cancel each other as they are not present in the opposite direction of each other, right? They are present to 60 degree angle to each other. आप देख सकते हैं इसे, ठीक है बच्चा, और इसी वजह से ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इनकी कोई ना कोई पोलैरिटी होगी, और कोई ना कोई पोलैरिटी है तो कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट भी होगा। अंडरस्टूड। वहीं पे आप देखिए जहां मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं, वहां पे जो आपके दो क्लोरीन एटम है, वन इज ऑन दिस पोजीशन एंड अनदर वन इज ऑन मेटा पोजीशन। सो क्या है, दे आर प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ योर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री एंगल, दे आर प्रेजेंट ओवर देयर। सो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट आपका कुछ ना कुछ होगा बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोलैरिटी स्टिल लेफ्ट। सो लेकिन बिकॉज डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज, तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा तो डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो, राइट। नाउ द लास्ट केस इज योर पैरा। तो आप देख सकते हो द क्लोरीन एटम, वो द क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, देयर इज नो गोइंग टू बी और एनी पोलैरिटी व्हिच इज लीड्स टू जीरो डाइपोल मोमेंट। तो आपका जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, there are two CCl dipoles being equal in magnitude and opposite in direction, cancel out each other, so उनका net dipole moment हो जाएगा 0। I hope it is quite understandable to you. So there are some of the important topics that we are going to discuss in the applications of inductive effect, and that is, my dear friend, comparison of relative strength of carboxylic acid. Over here you can see the structure of your carboxylic acid, the resonance structure of carboxylic acid, which upon hydrolysis is giving you carboxylate anion, this one anion I am talking about, and the hydronium ion is released as such. तो क्या बताने की कोशिश की है, हाइड्रोलिसिस के बाद आपका जो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर था आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो आपको मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट एनाइन दे रहे हैं यहाँ पे अपॉन हाइड्रोलिसिस। सो इसकी जो स्ट्रेंथ है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन द टर्म ऑफ डिसोसिएशन एसिडिटी कांस्टेंट, दैट इज योर Ka, जहाँ पे क्या है आपकी जो कंसंट्रेशन है आपके प्रोडक्ट की, इट इज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट एज सच। सो आई होप दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है ये चीज। सो जितनी ज्यादा आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उतनी ही कम आपके pKa की वैल्यू आएगी और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा।
बच्चा यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उतनी ही कम आपकी pKa वैल्यू होगी और उतना ही वो वाला एसिड आपका स्ट्रॉन्गर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे आपको 3 एसिड गिवन है, उनके Ka की वैल्यू दे दी है या हो सकता है pKa की वैल्यू दे दी है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। और वीकर आपका और वीकर एसिड कौन सा होगा? जिसकी pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू यू। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हम प्लस आई माइनस आई इफेक्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी होगा, मान लो क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप है, कोई भी ऐसा ग्रुप आपके कार्बन चेन के साथ अटैच है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलेट अनाइन के साथ अटैच्ड है, तो क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट अनाइन को और उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। वहीं अगर हम बात करें आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑलरेडी आपके ऑक्सीजन के ऊपर जो है, दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रही है आपके नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। तो अब होगा क्या? देयर इज अकरिंग द मोर एंड मोर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, which is making this oxygen atom, both these oxygen atom over here unstable, और destabilize करने के बाद क्या कर देगा? ये उसकी एसिडिटी को भी डिक्रीज कर देगा। समझ आई बात? So it is very easy to understand. Now next is the question that we are going to compare. अगर आपसे पेपर में पूछ लिया कि बताइए फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में से एसिडिटी किसकी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, तो बेटा यहाँ पे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का आपके पास आएगा कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे सी द स्ट्रक्चर्स ओवर है, बट बिफोर टॉकिंग अबाउट इट आपको एक और चीज, एक और बात की कंसेप्ट क्लैरिटी देनी थी रिलेटेड टू द ओके दिस वन टॉपिक। सो आप एक बात और समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखो बच्चा, Ka डिपेंड करता है अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ योर कार्बोक्सिलेट अनाइन एंड हाइड्रोनियम आइन। हाइड्रोनियम आइन की कंसेंट्रेशन को आप चाहो तो निग्लेक्ट कर सकते हो। So basically the dissociation constant is depending upon the concentration of your carboxylate anion, right? So जो भी फैक्टर आपकी कार्बोक्सिलेट अनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा will be ultimately increasing the dissociation constant of acid and it will result in the increasing acidity. समझ आइए आपको बात? तो कौन सी चीज आपके पास यहाँ पे, कौन सा एसिड स्टेबल होगा जहाँ पे आपके उसके जो कार्बोक्सिलेट अनाइन बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कोई भी फैक्टर अगर उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली आपके पास Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी और वो पर्टिकुलर एसिड होगा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड। आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हाट आई सेड इज एनी फैक्टर व्हिच स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट अनाइन relative to your carboxylic acid should increase this acidity, while any other factor which stabilizes the carboxylate anion, that is your RCO negative anion relative to RCOOH, decreases the acidity of carboxylic acid. So यहीं से हम हमारे पास कंसेप्ट आया था कि कौन से ग्रुप इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी, कौन से डिक्रीज करते हैं। तो वो हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। So the next was what we were going to compare among the formic and acetic acid के इन दोनों में से कौन सा एसिड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्मिक एसिड। आपका फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर में कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है। और जब इसकी आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसका जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास अपॉन लूजिंग वन ऑफ द प्रोटोन आपके पास जो आइन बनेगा, जो अनाइन आपके पास ऑब्टेन हो रहा है अपॉन रेजोनेंस इफेक्ट आप देख पा रहे हो, दैट इज योर फॉर्मेट आइन। अपॉन हाइड्रोलिसिस the formic acid upon losing one of the proton will be giving you a formate ion, which is definitely a weak base, but it is going to be stronger acid as compared to acetic acid, because फॉर्मिक एसिड के पास आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम होता है, टू डिक्रीज द एसिडिटी। So methyl group present in the acetic acid due to its plus side effect increases the electron density in the OH bond। क्या करेगा ये OH bond की तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इस एसिटेट एनाइन में ये O नेगेटिव के ऊपर इसका नेगेटिव चार्ज और इंटेंसिफाई और इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका जो एनाइन बनेगा वो बहुत स्टेबल होगा
and instead of losing the proton, it will get its proton back, और इतनी easily यहाँ से आपका proton नहीं निकल पाएगा, and the release of proton will become difficult as compared to the formic acid. So इसी रीजन से आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू योर एसिटिक एसिड. ओके बच्चा. सो नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. यहाँ पे भी आप दो केसेस देखोगे. लेट्स सी. So, बच्चा, as per this application, that is the effect of electron withdrawing group, यहाँ से आपके पास बहुत सारे reasoning question बनते हैं. A lot of reasoning question have been asked in the bachelor's exams, and one of the question is something like that: which among formic acid, acetic acid, and chloroacetic acid is more stable acid, and what is the reason behind that? So you will be explaining all the electron withdrawing and donating related concept and giving its resonating structure and explaining it in complete detail. And then after you will be giving the order of the stability कि उसमें से कौन सा acid आपका more stronger, more stable होगा as compared to the rest of the two. So this is how you are going to attempt. You can write down the question that I have said, that which among chloroacetic acid, acetic acid, and formic acid is the more stronger acid, and what is the reason behind that? So that is the first question, reasoning question that I've explained to you. And इसका आंसर आपको इसी वीडियो में, by the end of this video, आप already इसका आंसर सुन चुके हो. So please make sure to make a good note of this particular question. And yeah, let's see what are the reasoning answer that you're going to see over here. So over here you can see the example of acetic acid. उसके आप resonating structure देख पा रहे हो, and you can see the resonating structure of chloroacetic acid as well. I hope the pointer is quite visible to you. So first of all, let's discuss about the acetic acid only. तो आप देख पा रहे हो acetic acid जो है, it is a electron withdrawing group. Let me change it to pen. Okay. सो ये जो आपका ग्रुप है ना बच्चा, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा COOH पे, यानी कि अगर आपके पास एसिटेट आइन बनता है तो ये और इंटेंसिफाई करेगा नेगेटिव चार्ज को ऑन योर दिस ऑक्सीजन एटम, मेकिंग इट क्वाइट अनस्टेबल. तो ये क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को वापस लेने, प्रोटॉन को वापस लेने की, और प्रोटॉन को ये ले भी लेगा वापस. एंड in short we can say जब एसिटिक एसिड आपके पास है, ड्यू टू योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ से रिलीज ही आपके H का बहुत डिफिकल्ट होगा. ओके. So that is one thing about it. So the plus I effect of methyl group is basically destabilizing the acetate anion. The plus I effect जो है इसका, ये destabilize कर रहा है आपके acetate anion को. Why? Because there is occurring the intensification of negative charge on the oxygen atom, making it quite unstable in nature. Let's talk about chloroacetic acid. On the other hand, जो क्लोरीन है आपका, it is your इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम से ही क्लियर होना चाहिए, वो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ. तो बेटा यहाँ पे देख सकते हो आप, अपॉन हाइड्रोलिसिस आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएसिटेट आयन लाइक दिस, एंड यहाँ से क्लोरीन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ, मेकिंग सम स्ट्रक्चर लाइक दिस. सो आप इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद भी ड्रॉ कर सकते हो. और बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या की गई है कि क्लोरीन एटम विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, एंड इट इज अल्टीमेटली स्टेबलाइजिंग द क्लोरोएसिटेट आयन. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. सो इसी तरह आप इसका आंसर दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि क्लोरोएस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और आपके एस्टिक एसिड में सबसे स्टेबल कौन सा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर क्लोरोएसिटिक एसिड इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, विच इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू acetic acid. So ये इसका आंसर है, and the reason behind that I've already discussed in this particular slide. So these are some of the few important conclusions that you should keep in your mind कि जितना ज्यादा आपका plus I effect stronger होगा, उतना ही ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे और उतना ही वीक एसिड होगा आपके पास. ठीक है. स्ट्रॉन्गर द प्लस आई इफेक्ट, जैसे कि आपको 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड के केस में आप देख पा रहे हो कितने सारे अल्काइल ग्रुप लगे हैं. तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी डिस्टेबलाइजेशन होगी आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम की, और उतना ही वीक एसिड होगा वो. तो यहाँ पे इन सब के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है इथेनोइक एसिड, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है. ठीक है. और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूएंट को, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा. फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे सीरीज करवाई थी, यू नीड टू रिमेंबर दैट फॉर कीपिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन माइंड. तो नाइट्रो ग्रुप एज कंपेयर टू योर साइनाइड ग्रुप एंड फ्लोरीन ग्रुप इज क्वाइट
stronger. तो नाइट्रोएस्टिक एसिड ज्यादा stronger है देन साइनोएस्टिक एसिड एंड फ्लोरोएस्टिक एसिड. यू कैन सी द pKa वैल्यू एज वेल. मैंने आपको पहले ही बताया था Ka वैल्यू ज्यादा होगी, pKa वैल्यू कम होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी. Okay, this is what you need to remember. So another is your chloroacetic acid, bromo and iodo. All these you can see by your own. तो आपका minus I effect decrease करता है in this order. This is a simple order they have discussed. The previous order that I've told you in the previous 3, 4, 5 slides back. That is the order you should keep in your mind. So another conclusion is that जितने ज़्यादा number of electron withdrawing group उतना ज़्यादा stable acid, उतना ज़्यादा stronger acid. So अगर आपसे question पूछ लिया कि ट्राइक्लोरो आपका डाइक्लोरो और क्लोरो से क्यों stable है and give the reason behind that, so you will be explaining the complete reason by forming its resonating structures as well. ओके कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं एज इन केस ऑफ योर ट्राई, तो वो ज्यादा स्टेबल है. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसके रिस्पेक्टिव अनाइन ग्रुप की, अनाइन की, तो जिसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा और एसिड वो होगा स्ट्रॉन्गर. ठीक है, जितना ज्यादा, ये मैं आपको पहले बता दिया था कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड COH ग्रुप, आपके एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है. तो जैसे आप देख पा रहे हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ वाले कार्बन के ऊपर ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है. कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये कम स्टेबल है. और अगर बिल्कुल ही दूर हो गया लाइक इन केस ऑफ गामा क्लोरोब्यूटेरिक एसिड, तो वो आपका बहुत ही वीक एसिड होगा. नाउ अनदर इज योर कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल्स. बच्चा क्या है यहाँ पे आपका केस, जो आपका प्लस आई इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप का वो डिक्रीज कर रहा है इन द ऑर्डर ऑफ योर इथाइल टू मिथाइल टू हाइड्रोजन. ओके, सो एज यू मूव फ्रॉम योर हाइड्रोजन टू मिथाइल ग्रुप टू योर इथाइल ग्रुप, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी ट्रिपल बॉन्ड CH की, इट विल इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो आपका ये पूरा का पूरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव योर प्रोटोन, प्रोटोन नहीं निकलेगा और प्रोटोन रिलीज नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है. ठीक है, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू रिलीज प्रोटोन एंड हेंस एसिडिटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. आई होप दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. यहाँ पे भी बहुत क्लियर चीज है कि डबल बॉन्ड के साथ जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना स्ट्रॉन्ग उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा. जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतनी डिफिकल्टी होगी टू रिलीज प्रोटोन और उतना ही वीक होगा आपका एसिड. Okay, if I'm quite fast, so you can slow down the playback speed of the video, and if you still think that I'm quite slow, so you can increase the video speed as well. So, but I think I'm quite faster. So, okay, talking about the another conclusion of your this particular topic, इंडक्टिव इफेक्ट, द कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. तो बच्चा आपको इसके बेसिस पे भी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है. जितने भी आपके एलिफेटिक अमीन है लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और लाइक अमोनिया, दे पोजेस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपके नाइट्रोजन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. सो आपका क्या है वहां पे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, दे कैन इजीली डोनेट इट टू अ प्रोटोन. एज अ रिजल्ट जितने भी अमीन्स हैं लाइक अमोनिया, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिंग एज अ बेस, राइट. सो जितनी ज्यादा टेंडेंसी है आपके अमीन की टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज इट्स द बेस. तो आपका जो स्ट्रेंथ है अमीन की, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb और pKb. ओके, सो सेम ही केस है जैसे आपने पीछे देखा था, सेम ही कंसेप्ट है. बस यहाँ पे आपका इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द एसिड और अनाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर cation RNH3 positive. Okay, so pKb is the negative log of Kb. जितना ज्यादा pKb उतनी कम Kb वैल्यू. तो होगा क्या यहाँ पे इस केस में, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप है उनका बेसिसिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है. अब यहाँ पे बनता है एक और रीजनिंग क्वेश्चन. जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है, आपको पता है उनमें फर्स्ट दिस इज योर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसमें आपके उतने ही नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे, प्राइमरी में 1, सेकेंडरी में 2, टर्शरी में 3. सो आपको पता है जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट और उतने ही कम उसकी एसिडिटी. ठीक है, सो दीज अल्काइल ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर प्लस इफेक्ट टेंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ती जाएगी और उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी.
समझ आई बात? So consequently all the amines can donate electron more readily than ammonia and thus are stronger bases than ammonia. तो मतलब आपका tertiary amine ज्यादा stronger है as compared to secondary, as compared to primary and as compared to ammonia. समझ आया कैसे? बिकॉज आपके नाइट्रोजन पे और इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिफिकेशन हो रही है, इट कैन इजिली डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड readily as compared to ammonia. So that is one thing. So yeah, this is the ordered expected order as from the previous slide. But आपका जो actual order आता है वो इस तरह का होता है. That is dimethylamine is more stable as compared to methylamine, which is further more stable as compared to tertiary amine. Now why is this happening so? अब बेटा जो रीजनिंग क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी ना वो यही बनती है कि आपके पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर था ये पर एक्चुअल ऑर्डर है ये. Why is it? So the reason lies in the fact that you'll see over here. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा. बेसिसिटी जो है इंटायरली आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. इंटायरली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. तो सभी में अवेलेबल है, आपके अमोनिया में भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में भी है. ठीक है. बट इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्जुगेट एसिड. जो आपके पास जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बेसिसिटी. Okay, so in the first case you can see the primary amine, the nitrogen over here in case of primary amine is donating its pair of electron to the proton and it results in the formation of a structure something like this which is quite stable. Okay, now in case of secondary same thing is happening, it leads to the formation of this particular structure, right? Two of the hydrogen are forming a bond with your water, hydrogen bond with your water, and in tertiary only one is forming hydrogen bond with your water. So आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब बेसिसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, द मोस्ट स्टेबल इज गोइंग टू बी द प्राइमरी वन एंड सेकेंड मोस्ट स्टेबल इज सेकेंडरी एंड द मोस्ट स्टेबल इज गोइंग टू बी टर्शरी वन. सो बेटा दो क्वेश्चन को मिंगल मत करना. ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस वाली स्लाइड से डिफरेंट है. यहाँ पे आपके प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी अमीन की प्रॉपर कंपैरिजन की गई है कि इफ नॉट डिपेंडिंग एंटायरली अपॉन द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आपकी कॉन्जुगेट एसिड पे किस तरह से डिपेंड करके ये आपके इस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेस को ये जस्टिफाई कर रहा है. दैट इज प्राइमरी greater than secondary, greater than tertiary. But in the previous slide that you have seen, यहाँ पे आपने देखा था एक्चुअल ऑर्डर जो आपके पास क्वेश्चन जो है ये अलग है. एक्चुअल ऑर्डर जो आपका बन रहा है डाइमिथाइलमीन का ज्यादा है. दैट इज अ टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शियरी. वो किस वजह से हो रहा है बच्चा? दिस इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर पीकेबी वैल्यूज. यू कैन सी पीकेबी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपेयर किया है. दैट इज ऑल अबाउट इट. अंडरस्टूड? क्लियर है ये सबको? ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है आपके पास. अंडरस्टूड? ठीक है. यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट लगा के आपको क्लैरिटी दी गई है कि वाई और सेकेंडरी अमीन इज लेसर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी. बिकॉज आपके सेकेंडरी अमीन के केस में क्या है, इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम वाइल दैट ऑफ टर्शरी हैज ओनली 1 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद योर वाटर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? ओके. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आपके पास क्या होता है, देर आर 2 ऑपोजिंग फैक्टर्स जो बैलेंस कर रहे हैं ईच अदर इन केस ऑफ योर सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन के केस में आपके 2 ऑपोजिंग फैक्टर हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो जिसकी वजह से जो आपका सेकेंडरी अमीन है वो फिर से ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू योर प्राइमरी एंड टर्शरी. अंडरस्टूड? Secondary amines are still stronger than that of primary and tertiary. The reason behind that, the two opposite factors, the two opposing factors, that is your first one is your, कौन सा था पहला वाला factor बच्चे? First factor was your the presence of lone pair and second factor was the formation of conjugate acid. These two factors are balancing in a manner making your secondary amine more basic as compared to primary and tertiary. तो ये एक तरह से प्रीवियस वाले का भी आंसर है और इसी में आपका एक सिंपल आंसर भी है दैट अगर आप जस्ट सिंपली अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस के बेसिस पे अगर इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी. बट अगर आप कंपेयर करोगे इसे ऑन द बेसिस ऑफ योर सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ योर बोथ ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज योर presence of lone pair of electron on nitrogen and the presence of conjugate acid base pair over here.
सो यहाँ पे आपका उस केस में जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अमीन होगा वो होगा सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शरी. सेकेंडरी वुड बी द मोस्ट स्टेबल. ये वाला ये वाला आपका एक्चुअल ऑर्डर जस्टिफाई करेगा. ये क्या बोला मैंने आपको इस केस में, सेकेंडरी क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे दो फैक्टर्स लग रहे हैं आपके. फर्स्ट वन इज योर the presence of lone pair of electron or nitrogen atom donating to the proton. Second is the formation of your conjugate acid, that is this one. Okay, I hope that is quite understandable to you all. So the important conclusion that you can see related to it, another one is your effect of electron withdrawing group. यहाँ पे आप देख रहे हो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम आपके पास लगे होंगे, जैसे आप देख पा रहे हो इन दिस केस ऑफ योर ट्राइफ्लोरोमिथाइल अमीन, ये है उसका स्ट्रक्चर. बच्चा देखो ये कार्बन एटम है आपके पास, यहाँ पे टोटल ऑफ कितने फ्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे 9 फ्लोरीन एटम्स है, 9 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स लगे हुए हैं यहाँ पे. सो व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की आपकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा. जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो नाइट्रोजन की बेसिसिटी को इंक्रीज कर देंगे, अमीन्स की बेसिसिटी को इंक्रीज कर देंगे. बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, एसिडिटी को नहीं. ठीक है, बेसिसिटी को यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर, राइट इट डाउन, electron withdrawing group decreases the basicity of your amines and electron donating group will be increasing the basicity of your amines. So that is all about the inductive effect in this particular slide, and I hope it is quite understandable to all of you. In case you haven't heard or haven't understood any of the topic, just let me know, I'll repeat it for you. And otherwise it was quite understandable. Inductive effect was quite easy to digest, and it won't be difficult at all. आपके जो रिलेटेड कंसेप्चुअल और रीजनेबल क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिपीट इट फॉर यू. And if you liked it, do subscribe, share and like my video, and press the bell icon for latest updates. So keep on sharing, keep on liking, and yeah, keep studying. Thank you.